Good morning everyone. Myself Dr. Shantanu Prakash Agrawal, Scientific Secretary GP Association. Today we have gathered here as a regular part of our morning CMEs, and the topic for today is secondary osteoporosis. For this I would like to invite Dr. Niti Dongra to give us a detailed knowledge and enlighten us about this topic. Thank you. At the very outset, I would like to thank Dr. Shailendra Kumar sir, President GP, and Smita Jaswal ma'am. Maybe she's coming, joining us shortly, to give me this opportunity to speak on such a relevant topic, which is secondary osteoporosis. So let us go straight to our topic. What is secondary osteoporosis? Now, secondary osteoporosis is a loss of bone or alteration in the bone microstructure and occurrence of fragility fractures due to underlying disease or medication. So when we talk of secondary osteoporosis, first we should know what is primary osteoporosis then. So primary osteoporosis is due to aging, senility, or due to the loss of hormone. And if the osteoporosis is diagnosed due to any underlying cause, which is frequently a disease or a medication, then you will diagnose it to be a secondary osteoporosis. Okay? Then why it is important to know about this disease? So you please pay attention to this slide. 20 to 30% of postmenopausal women and 50% of men with osteoporosis have one or more secondary contributors. And it is also very, very common in premenopausal women, contributing to at least 50% of the cases. 50% of the cases whom you are going to diagnose in premenopausal women will have a secondary cause. This is very important. Now, in a study which was conducted in India, it was found that almost half of the patients, again 50%, you just remember this 50% mark. 50% of the patients with osteoporosis, they had one or more secondary cause to it. So that is why it is very, very important to know and diagnose this entity. Now, what is the disease burden? This slide looks very simple to you. It is having only two statements, but when you analyze the slide, it has a very greater impact in your mind. What does this slide say? It says all of you know that osteoporosis ultimately it will be leading to fracture of vertebra, spine, hip, and upper end of humerus and femur. Now the hip fracture has mortality of 5 to 20% and morbidity of 30%. So if we analyze the slide, we will come to know that out of every 3 patients whom we are diagnosing as a case of hip fracture, one will not be able to walk, or he will be moribund, he will be on bed for his lifetime. हर 3 में से एक पेशेंट कभी चल नहीं पाएगा और हर 5 में से एक पेशेंट मर जाएगा. So it has so much to say. So we can reduce this morbidity and mortality due to hip fracture if we can diagnose this problem, and we can really intervene it in a early stage. So now WHO definition of osteoporosis. WHO defines osteoporosis as a bone density that falls 2.5 standard deviation below the mean for young healthy adults for the same sex and race, and it is also referred to as a T-score of -2.5. सेम सेक्स एंड रेस. और टी स्कोर कैसे निकालना है? हमने 100 हेल्दी इंडिविजुअल्स ले लिए, उसका हमने उन सब का बोन डेंसिटी हमने लिया और उसको ऐड किया और उसको 100 से डिवाइड कर दिया, देन वी गेट द मीन. और ये हेल्दी इंडिविजुअल्स कौन हैं? ये ज़्यादातर वो ग्रुप है 20 से 29 ईयर्स के बीच में जिनका पीक बोन मास सबसे ज़्यादा है. सो हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज समथिंग विच इज़ कॉल्ड एज पीक बोन मास, which is the maximum bone mass attained by a individual during his lifetime. ये कैसे होता है कि ये 14-16 ईयर्स से बढ़ना शुरू करता है, 18 ईयर्स तक मैक्सिमम जाता है और मैक्सिमली 30 ईयर्स तक. 30 ईयर्स के बाद हमारी बोन कभी ग्रो नहीं करेगी, जितना ग्रोथ है वो 30 ईयर्स तक हो गई, उसके बाद उसका लॉस ही लॉस होना है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी आर कैलकुलेटिंग द टी स्कोर. नाउ इफ द टी स्कोर इज -2.5, it will be diagnosed as the case of osteoporosis. If the T score is between -2.5 and -1, it will be taken as osteopenic, and below -1 it will be taken as normal,
and if it is minus 2.5 along with the presence of fragility fracture, it will be diagnosed as severe osteoporosis. Now what is the Z score then? Z score is also important to note. Now we have taken जो हमने healthy individuals T score में लिए थे वही हमने Z score में लिए हैं, लेकिन हम लोग एडजस्ट क्या से किया है, वहाँ पर रेस और सेक्स था, यहाँ एज आ गया, एज और सेक्स के लिए हमने इनको इंडिविजुअलाइज किया है. देन वी हैव टेकन अ स्कोर. Now a Z score below -2 is considered abnormal and should be referred as low for that age. अगर हमने 40-45 साल की लेडी में Z score निकाला, उसका Z score -2 से कम आया, तो we have to look for a secondary cause, क्योंकि वो उसके लिए low for age है. So a low Z score indicates the need to evaluate for secondary osteoporosis. So secondary osteoporosis में you will look for Z score, not for T score. This is important takeaway from this slide. So what is osteoporotic related fracture then? Osteoporotic related fractures are adulthood fractures of any bone that occurs in the setting of trauma less than equal to a fall from a standing height and with the exception of skull, face and toes. अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ और मैं ऐसे गिर जाती हूँ, तो अगर मैं ठीक हूँ, मेरी बोन्स हेल्दी हैं, तो मेरे को फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए. लेकिन अगर मैं ऐसे गिरी और मुझे फ्रैक्चर हो गया, इसका मतलब मुझे ऑस्टियोपोरोसिस है. फॉल फ्रॉम अ स्टैंडिंग हाइट. ओके, सो नाउ फॉर पैथोफिजियोलॉजी. मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में ही रखूँगी, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली बोन लॉस हो क्यों रहा है. सो देयर इज समथिंग विच इज़ कॉल्ड एज बोन रिमॉडलिंग. ये बोन रिमॉडलिंग क्या है, अब इसको समझते हैं कि बोन इज़ अ डायनेमिक ऑर्गन. बोन इज़ अ डायनेमिक ऑर्गन. यहाँ पे 2 सेल्स हैं, एक ऑस्टियोब्लास्ट है, एक ऑस्टियोक्लास्ट है, एंड दे आर फंक्शनिंग इन परफेक्ट सिंक्रोनी. एक बैलेंस होता है इन दोनों में. ऑस्टियोक्लास्ट अपना काम कर रहे हैं, वो क्लास्टिक एक्टिविटी कर रहे हैं, ऑस्टियोब्लास्ट प्रोलिफरेट कर रहा है. And when they are acting in perfect synchrony, the bone, bone loss is not there. But if there is any problem which leads to imbalance in this, resorption, osteoclast क्या करेगा, resorption करेगा, और osteoblast क्या करेगा, formation करेगा. So whenever there is an imbalance in between, resorption and formation, तो bone loss होगा. अब क्या हो रहा है, during later in life, bone remodeling, that is resorption and formation, becomes imbalanced, and especially it is seen in women after menopause, जो कि अपन को मालूम है कि ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है, क्योंकि ईस्ट्रोजन इज हैविंग अ प्रोटेक्टिव रोल. नाउ दिस विल लीड टू इंक्रीज इन ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, डिक्रीज इन ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी एंड इंक्रीज इन बोन रिमॉडलिंग साइट्स, एंड इट इज ऑल्सो लीडिंग टू परमानेंट लॉस ऑफ टिश्यू एंड डिस्ट्रक्टेड स्केलेटल आर्किटेक्चर. परमानेंट लॉस ऑफ टिश्यू एंड डिस्ट्रक्टेड स्केलेटल आर्किटेक्चर. So this is a small depiction of bone remodeling cycle. Okay, now first what happens is that the osteoclasts आ रहे हैं, they are causing bone resorption. यहाँ पे bone resorption हुआ and they are leaving a cavity on the surface of the bone for the osteoblastic precursors to act on, and then osteoblastic precursor are giving some stimulus for the osteoblast to proliferate, और फिर ये osteoblast क्या करें, they are laying down a new bone, new osteoid on this surface cavity जो कि osteoblast ने दी थी. ये template है, it is a template for the new bone formation. So osteoblasts are laying down the new osteoid, and it is followed by the mineralization, और फिर ये pool is maintained. So this cycle is continuously going on in our bone remodeling cycle. Then it is important to note that bone remodeling cycle in case of cortical bones, it is around 120 days, and in a cancellous bone it is around 2 years. This is very important to note because cancellous bones जो हैं वही हमारे vertebra में है, वही upper end of the femur में है, वही upper end of the humerus में है. So when you are treating a patient and you want to really assess the patient for your treatment, तो आप कब उसका BMD दोबारा कराएंगे? At least 2 years, क्योंकि 2 years is the basic time which is required for a bone remodeling cycle to occur. अगर उसके पहले आप कराएंगे, you won't get the required information. So it is very important to note, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ गया तो we can ये पैथोफिजियोलॉजी क्या है डिजीजेस की, और ट्रीटमेंट या डिजीज उसका ड्रग्स का एक्शन क्या है. Now this is very important, causes of secondary osteoporosis. So first stands in the list is endocrine causes, premature menopause, medications, malabsorption syndrome, dietary causes, smoking, decreased physical activity, systemic diseases, hematological disorders and inherited disorders. I will take one by one. Endocrine causes में क्या important है, diabetes stands first in the list. इसको हम थोड़ा सा अभी देर के बाद डिस्कस करते हैं. Thyrotoxicosis में क्या हो रहा है? Thyrotoxicosis, you all know it is a state of increased catabolism. हाँ, वो बोन रिमॉडलिंग साइकिल में मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई, देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज इंक्रीज बोन टर्नओवर स्टेट.
जब ये बोन रिमॉडलिंग साइकिल शॉर्टन हो जाती है, लाइक इफ इट इज़ शॉर्टन देन 120 डेज या 2 ईयर से कम हो गई, तो क्या होगा, साइकिल जल्दी जल्दी होगा लेकिन बोन मेच्योर बोन फॉर्म नहीं हो पाएगी। यही चीज़ थायरोटॉक्सिकोसिस में होगी। देयर आर सम डिजीजेज इन विच यू से कि इंक्रीज बोन टर्नओवर स्टेट्स। सो दिस इज़ वन डिजीज जहाँ पे इंक्रीज बोन टर्नओवर हो रहा है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट कॉज ये है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि when you are treating your patients for hypothyroidism and you are giving them thyroxine and you are giving them thyroxine and you suppress their TSH levels to a point where you are giving them iatrogenic thyrotoxicosis. Now if you have suppressed the TSH levels to below 0.01 milli-international units per liter, then they are susceptible to develop iatrogenic thyrotoxicosis. So you should be very, very important in maintaining your target levels of TSH 2.01. This is very important. Now again, hyperparathyroidism में क्या हो रहा है? Hyperparathyroidism में there is a decrease in serum calcium levels. पैराथार्मोन आया, पैराथार्मोन इंक्रीज हुआ, उसने क्या किया? It is mobilizing the calcium from the bone. It is increasing the levels of serum in blood, but actually it is causing a negative calcium balance at the level of bone. So bone loss हो रहा है to maintain the calcium homeostasis. Then again, Cushing syndrome में क्या हो रहा है? All the corticoids are increased, sex corticoids, mineralocorticoids and glucocorticoids. और corticoids का एक direct action है which we will discuss later. Adrenal insufficiency में क्या हो रहा है? Adrenal insufficiency में ये हो रहा है कि ईस्ट्रोजन भी कम हो गया, टेस्टोस्टेरोन भी कम हो गया, दोनों का एनाबॉलिक इफेक्ट, प्रोटेक्टिव इफेक्ट बोन पर है, वो लॉस्ट हो गया. सो द बोन्स आर गेटिंग वीक. Again, medications, yes, glucocorticoids stands first in the list. This is very, very important. Anticonvulsants, phenytoin, valproic acid, carbamazepine. PPI, proton pump inhibitors, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा लिखते हैं. This is a very, very important cause of increased bone loss. क्यों हो रहा है? Because they are causing decreased calcium absorption. इसके कारण हो रहा है. और OHA, again oral hypoglycemic agents, loop diuretics, ये भी increase कर रहे हैं. They are increasing calcium in the urine, excretion of calcium in urine and decreasing the calcium absorption. Heparin, again it is also very important. SSRIs का एक direct effect है. They are causing direct effect on osteoclast and osteoblasts. So depression is an independent marker for osteoporosis. So आप लोगों का खुश रहना बहुत ज़रूरी है. Aromatase inhibitors, estrogen receptor blockers हैं. Lithium, aluminium containing medications, again they are जो हम लोग ये सब देते हैं, syrups, mucain देते हैं, ये देते हैं. इसमें क्या हो रहा है? Again they are interfering with the calcium absorption and they are increasing the excretion of phosphorus and fluorides. So इसके कारण calcium का absorption कम हो रहा है और bone loss हो रहा है. So you would you have to have in your mind कि बहुत judicious use करना चाहिए. हम लोग सालों सालों चलाते रहते हैं ये सब. Cytotoxic and immunosuppressive drugs, DNPA और GnRH agonist हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं gynecologist. इसमें क्या हो रहा है कि जब इसको हम बाहर से दे रहे हैं तो पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन्स कम हो रहे हैं और इसके कारण एस्ट्रोजन कम हो रहा है. सो बोन लॉस हो रहा है. ATT एंड एंटीकन्वल्सेंट्स, ये दोनों एंजाइम इंड्यूसर्स हैं. सो इफ दे आर इंड्यूसिंग द एंजाइम, दे आर इंटरफेयरिंग विद द विटामिन डी मेटाबॉलिज्म, इसलिए बोन वीक हो रही है. Orlistat again it has something to do with the malabsorption. Now dietary causes: vitamin D deficiency, excessive protein intake, increased vitamin A intake, smoking, alcohol, parenteral nutrition and anorexia nervosa. So vitamin D deficiency, I will be taking it in detail. Excessive protein intake से क्या हो रहा है? They say that if you take proteins in excess, then they break down into acids, and acids again they will lead to decreased calcium absorption. This is the theory. They say we don't give excessive, protein intake should not be excessive. Then smoking and alcohol, again they have a direct effect. Smoking 20 cigarettes per day से ज़्यादा नहीं recommended है, और women के लिए 10 cigarettes है. और alcohol again I think it is 3 units for men and 2 units for women per day. और 1 unit per day का कल हमें मैम ने बताया कि it has a protective action on bone. So अगर आपको पीना है तो थोड़ी थोड़ी पिया करें. As उदास साहब से थोड़ी थोड़ी पिए. Parenteral nutrition again and anorexia nervosa, estrogen के absorption, estrogen it decreases estrogen, somehow it decreases estrogen. And yes, again we go to hematological disorders: thalassemia, multiple myeloma, lymphoma, leukemia, hemophilia. These are all increased bone turnover states which we have discussed it before. Nutritional disorders: protein allergy, malnutrition. Protein allergy malnutrition में क्या हो रहा है कि पेशेंट का BMI ही कम हो गया,
BMI less than 19 is an independent risk factor for bone loss. अब उसका skeletal mass ही नहीं है, muscle mass ही नहीं है, तो फ्रेजिलिटी अपने आप उसका जो है वो ही BMI, तो उसको ज़्यादा फॉल होगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, उसका जो बेसिक जनरल आर्किटेक्चर है वही कंप्रोमाइज़ हो गया। लिवर डिजीज़ में क्या हो रहा है, लिवर और किडनी डिजीज़ को समझना ये है कि जब भी विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म बनता है तो इट इज़ टेकिंग प्लेस एट 2 लेवल्स, लिवर एंड किडनी। पहला हाइड्रोक्सिलेशन लिवर में होता है, दूसरा हाइड्रोक्सिलेशन किडनी में होता है। तो आप ये याद रखें बस कि लिवर और किडनी डिजीज़ में दोनों में विटामिन डी के एक्टिव फॉर्म के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, इसीलिए उसमें बोन लॉस होना ही होना, बस इतना समझना ज़रूरी है। सो एनी लिवर डिजीज़ और किडनी डिजीज़ विल लीड टू बोन लॉस। Pernicious anemia, post-gastrectomy states and bariatric surgery, again they have to do with malabsorption of vitamin D. So rheumatological disorders, rheumatic arthritis and ankylosing spondylitis, इसमें कैसे बोन लॉस हो रहा है कि अगेन ये chronic inflammatory states हैं and patients are taking immunosuppressive drugs or they are taking steroids for a longer period of time, and so bone health is compromised. Inherited causes, osteogenesis imperfecta, Marfan syndrome, hematochromatosis, glycogen storage disorders and Ehlers-Danlos syndrome. ये थोड़ा academic interest के लिए लगता है, लेकिन when you cannot find any secondary cause, then you will have to look for these causes, especially when you have a history of familial fracture in a patient. अगर patient कह रहा है मेरे दादी नानी इन सबको हुआ था, ऐसा कुछ हुआ है, अगर familial fracture की history है और आपको कोई cause नहीं मिल रहा, तो then you have to look for these causes. So other diseases में immobilization important है, pregnancy and lactation. Immobilization में क्या हो रहा है कि patient बहुत दिनों तक bedridden है, तो skeleton inactive हो गया। skeleton जब inactive हो गया तो calcium का excretion बढ़ा देता है body से, calcium excrete होने लगता है, इसके कारण bone loss होता है। Pregnancy और lactation में there is an increased demand है, as much as 6% of the bone loss can occur, but this is reversible. So you have to जो भी recommendation है that has to be followed, और जितनी भी increased demand है that has to be given to the patient. COPD, again this is a very important disease which is usually underdiagnosed for bone loss. और COPD में क्या हो रहा है, again they are taking steroids for a longer period of time. It is a chronic inflammatory disorder, skeletal mass is decreased and multifactorial etiology है, but these are the patients that are so common patients in your day-to-day practice, जो आप कभी सोचते भी नहीं है कि इनमें भी बोन लॉस इतना हो सकता है. So these are the patients you should target at for the diagnosing case for osteoporosis. Now glucocorticoids, this is the most important single cause for secondary osteoporosis. Glucocorticoids are widely nowadays given for a variety of disorders. COPD stands first, rheumatoid arthritis, connective tissue disorders, inflammatory bowel disease and post-transplant cases. These are very common to find. And my dear friends, you should note that there is no safe dose for steroids. There is no safe dose. Even if you are thinking that we have started the patient of very low dose and it will not be affecting it, no, it is not the case. In any dose, it is detrimental to your bones. Now, you see, osteoporosis-related fractures are serious side effects of chronic steroid therapy. Rate of bone loss due to steroid therapy is approximately 10 to 20% per year, compared to the bone loss caused by menopause, which is only 1 to 2% per year. See, it is around 10-fold increase, right? कितना ज़्यादा है? 1 to 2% post menopause and steroid के कारण कितना है? 10 to 20% per year. So one drug which you should avoid will be steroids. Risk of fracture is directly proportional to dose and duration of the steroid therapy. Bone loss is more rapid in early months of treatment. Trabecular bone is more commonly affected. There is an increase in fracture risk within 3 months of starting the steroid treatment, and all routes of steroid are considered dangerous, including intra-articular and inhalational routes. So आप ये सोच के खुश मत होइए कि हमने पफ दे दिया इसको कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है. इनहेलेशनल फॉर्म से भी होगा दिक्कत. स्टेरॉइड इफेक्ट्स ऑन बोन क्या है, टू समराइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इसीलिए कम करता है बोन लॉस क्योंकि इतनी सारी चीज़ें कर रहा है ये. डिक्रीज ऑस्टियोक्लास्ट फंक्शन, इंक्रीज इन ऑस्टियोब्लास्ट, अपोप्टोसिस. अपोप्टोसिस इज प्रोग्राम सेल डेथ, सेल्स अपने आप मरने लगते हैं. इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन, डिक्रीज इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंक्रीज इन कैल्शियम लॉस फ्रॉम यूरिन, डिक्रीज एड्रिनल एड्रोजेंस एंड सप्रेस सेक्रीशन ऑफ टेस्टिकुलर एंड ओवेरियन हार्मोन्स. इसको कैसे समझें कि व्हेन यू आर एक्सोजीनियसली गिविंग स्टेरॉइड्स, जब आप बाहर से स्टेरॉइड्स देंगे तो अंदर इसका सिक्रीशन कम हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा. इसलिए जब आप बाहर से देंगे तो ये सारी चीज़ें अंदर कम हो जाएंगी, विच विल लीड टू बोन लॉस. Steroid induced myopathy also leads to increased tendency to fall, leading to fracture of already weakened bones.
Now, yes. Now, if a patient comes to you with a chronic steroid intake, अगर आपके पास पेशेंट आया बोल रहा है सर मैं 10 साल से स्टेरॉइड ले रहा हूँ, तो आप उसके लिए क्या असेस करोगे? यू विल लुक फॉर द हाइट, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट्स जो स्टेरॉइड्स पर हैं उनमें कभी कभी क्या है ना, उनकी हाइट कम हो जाएगी 1 या 1.5 इंच से, क्योंकि वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर्स हो जाते हैं विच गो अननोटिस्ड. तो हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है. मसल स्ट्रेंथ, 24 आवर यूरिनरी कैल्शियम एंड अ DEXA स्कैन. If the patient is less than 60 years of age, you will go for a DEXA scan of spine, and if it is more than 60 years, you will go for DEXA scan for the hip. So again, treatment क्या है? Glucocorticoids induced osteoporosis का bisphosphonates first line drug है, teriparatide and Elisir. I have intentionally kept this slide here because I just want to convey you कि glucocorticoid induced osteoporosis को आप treat कर सकते हैं. If you recognize it, you can treat it. So again, estrogens का क्या इफेक्ट है osteoporosis पे? Increase osteoclastic, it has a protective effect, decrease osteoclastic formation, increase in apoptosis of bone cells, and decrease in osteoblastic lifespan. And it also, what is it causing? It is causing an increased activation of new bone remodeling sites, increase in osteoclastic invasion of trabeculae, leading to a permanent loss of template for new bone formation. जो हमने वो स्लाइड देखी थी उसमें हमने देखा था कि ऑस्टियोक्लास्ट दे लीव कैविटी जहाँ पर ऑस्टियोइड आता है. अगर वो कैविटी ही नहीं होगी, ऑस्टियोक्लास्ट इतना एक्टिव हो जाएगा कि वो टेम्पलेट ही नहीं मिलेगा. जब बोन फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा, न्यू बोन फॉर्मेशन, तो बोन बनेगी ही नहीं. सो उसके कारण क्या होगा? रैपिड बोन लॉस विल एंश्यू. That is the reason so many things are happening at one point of time. So many things are happening. That is why bone loss is so much after depletion of estrogen in our body and exaggeration of imbalance between bone formation and bone loss. So again, diabetes and osteoporosis. Diabetes causes an alteration in chemical composition of bone, making it more brittle. कुछ chemical composition ही bone का गड़बड़ हो जा रहा है diabetes में. अब ये क्या है ये मेरे को इतना मैंने नहीं पढ़ा, but there is a chemical composition alteration in bone tissue, making it more brittle. Diabetes increases conversion of precursor cells of osteoblasts into adipose tissue. And diabetes increases neuropathy and myopathy, leading to increased propensity to fall, causing fractures. Diabetes type 1 and type 2 both increase risk of fracture, but type 1 diabetes में 12-fold increases बताया गया कि it can increase to as much as 12 folds. 12 folds बहुत ज़्यादा है. So type 1 diabetes you have to treat it aggressively. Now when is BMD indicated? ये बहुत important है. BMD आपको कब कराना है? Adults with fracture at 50 years or above. Now young postmenopausal women के लिए recommendation है कि 50 years से ज़्यादा है तो आपको कराना है. अगर less than 50 years हैं और जिनके साथ associated risk factors हैं उनको कराना है. जैसे अगर कोई लेडी उसका BMI कम है तो एक risk factor हो गया. अगर वो किसी medication पे है तो risk factor, तो आपको BMD कराना है. Now, all women, more than 65 years of age and men more than 70 years of age, regardless of clinical risk, you have to order a BMD. Then men 50 to 69 years of age with clinical risk for fracture. Yes, and this is very, very important slide. Please pay attention to this slide. In premenopausal women, when is BMD indicated? When there is a secondary cause, जब आप एक इसका secondary cause ढूंढ लेते हैं, presence of vertebral compression fractures. कभी आपने उसका इंसिडेंटली ही आपने देख लिया एक्सरे और उसमें आपको दिख गया कि इसको वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर है, और उसके बाद में एक हिस्ट्री ऑफ फ्रैजिलिटी फ्रैक्चर. अगर उसने आपको हिस्ट्री दी कि मैं सर ऐसे गिर गई और जरा से गिरने से मुझे कोलिस फ्रैक्चर हो गया, मतलब वो खुद तो नहीं बोलेगी पर आप डायग्नोज करोगे. तो अगर ये सारी 3 चीज़ें हैं, सेकेंडरी कॉज, प्रेजेंस ऑफ BCF एंड हिस्ट्री ऑफ फ्रैजिलिटी फ्रैक्चर, यू विल ऑर्डर अ BMD. अदरवाइज प्रीमेनोपॉजल वुमेन में BMD इंडिकेटेड नहीं है. Now again, primary hyperthyroidism, parathyroidism, glucocorticoid treatment, vertebral abnormalities on X-ray and managing response to treatment for osteoporosis. ये सारी conditions हैं जिसमें हमको BMD कराना है. Pitfall of BMD क्या है? It does not give insight about the skeletal architecture of the bone. skeletal architecture के बारे में इतनी information नहीं देता है, तो maybe we will be having some new diagnostic modalities in future, जैसे trabecular bone score वगैरह, जो हमको skeletal architecture के बारे में कुछ बता पाएँ. It is underused? Yes, definitely it is underused. You need to use it more. Now what is FRAX assessment tool? ये एक simple सा ये एक tool है which is very important to know. ये एक साइट है जिस पर आप अगर क्लिक करेंगे तो ये कैलकुलेशन टूल आ जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्स कैलकुलेटर है ये. एंड इसमें ये एक्चुअली इंडिया के लिए थोड़ा सा
आई थिंक कि उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, लेकिन है, क्योंकि इसमें इन्होंने एक तो इन्होंने कोकेशियंस पे स्टडी किया, दूसरा ये इसमें आप ये कंट्री स्पेसिफिक टूल है। अगर आप इंडिया डालेंगे तो फिर वो इंडिया के अकॉर्डिंगली ही आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चनर आता है, एज कितनी है आपकी डाल दीजिए, सेक्स डाल दीजिए, वेट डाल दीजिए, हाइट, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर कोई है, ये बहुत आसान है, सारा येस नो में भरना है आपको। तो प्रीवियस फ्रैक्चर है कि नहीं, पेरेंटल फ्रैक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर ऑफ हिप इन योर फैमिली विल इंक्रीज द रिस्क। तो फ्रैक्चर हिप बहुत ज़रूरी है देखना। करंट स्मोकिंग, आप स्मोक कितना कर रहे हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस, अल्कोहल 3 और मोर यूनिट्स पर डे एंड फीमोरल नेक का BMD, ये सारा भरने के बाद में इट विल गिव यू अ risk, and if it will calculate the risk, and if the risk will be more than 20% for any fracture, or it is more than 3% for hip fracture, then the pharmacotherapy is indicated. अगर आपका 3% से ज़्यादा हिप फ्रैक्चर के लिए रिस्क आता है इसमें, या 20% से ज़्यादा अदर फ्रैक्चर्स के लिए आता है, तो आपको उसको ट्रीटमेंट शुरू करना है। स्मोकिंग डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट ऑन ऑस्टियोब्लास्ट, मॉडिफाइज एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म, इट हैज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट्स। तो स्मोकिंग आई थिंक बहुत ख़राब है, ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि इट हैज़ गॉट अ डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट ऑन ऑस्टियोब्लास्ट। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिड्यूसेस बोन लॉस, इम्प्रूव्स न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, इट इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन, इट इम्प्रूव्स बैलेंस, इट इंक्रीजेस मसल एंड बोन स्ट्रेंथ, reduces the risk of falls, and however the beneficial effects wane off once we discontinue the exercises. So there is no other way out, you have to exercise. एक्सरसाइज का कोई विकल्प नहीं है आपके पास, करनी ही पड़ेगी। विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी इज पुअर न्यूट्रिशन, malabsorption, liver and kidney disease, obesity. Obesity is one such cause which can lead to vitamin D deficiency. Volumetric dilution into greater volumes of fat, serum, liver and muscle. Inadequate sunlight, use of sunscreens, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपने विटामिन डी लिया, या तो आपने कम लिया, या लिया तो फिर वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, और या एब्जॉर्ब हुआ तो आप एक्सपोजर ही नहीं था सनलाइट का, तो सिंथेसिस ही एडिक्वेट नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स patient will come to you, she belongs to a very good family, she is working in a bank, she is working in a corporate some corporate company, and she comes to you कि डॉक्टर साहब मुझे तो बहुत पेन हो रहा है, मुझे बैक एक भी हो रहा है, एंड यू आर वंडरिंग कि यार 20-25 साल की लड़की इतनी अच्छी लग रही है, इसको कहाँ से बैक एक हो गया। तो यू विल हैव टू इंक्वायर कि हाँ ओके शी इज़ वर्किंग इंडोर्स, वो कभी सनलाइट में जाती नहीं है, और जाती है तो सनस्क्रीन लगा लेती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है टू रूल आउट कि विटामिन डी डेफिशिएंसी क्यों हो रही है। विटामिन डी इज डिक्रीज्ड एंड देन इट विल लीड टू इंक्रीज इन पैराथॉर्मोन, इट विल डिक्रीज अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड डिक्रीज इन आयनिक कैल्शियम। सो ये बैलेंस मैंने यहाँ बनाया है। आप सोच रहे होंगे मैंने क्यों बनाया है बैलेंस। मैंने बैलेंस इसलिए बनाया है कि देयर इज अ फाइन बैलेंस स्टेट इन द बॉडी फॉर कैल्शियम, विटामिन डी एंड प्रोटीन। मेरा ये बहुत स्ट्रांगली मैं आपको यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि विटामिन डी, कैल्शियम और प्रोटीन, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं विच हैव टू बी इन बैलेंस इन आवर बॉडी। अगर कम हुई तो भी बोन हेल्थ के लिए बेकार है, अगर ज़्यादा है तो भी बोन हेल्थ के लिए बेकार है, क्योंकि विटामिन डी की एक्सेस हो गई तो भी वो ख़राब है, वो बोन रिमॉडलिंग साइट्स को इंक्रीज़ कर देता है बोन में, तो बोन लॉस करेगा। हाइपर कैल्सीमिया अगेन इट विल लीड टू बोन लॉस, एंड अगर इंक्रीज प्रोटीन, एक्सेसिव प्रोटीन इनटेक है विच वी हैव डिस्कस, वो भी डेलिटरियस है बोन हेल्थ के लिए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन। कई लोग प्रोटीन खाए जा रहे हैं, प्रोटीन किसी ने बता दिया तो प्रोटीन ही खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। यू हैव टू हैव जो रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक योर डाइट बैलेंस फॉर ऑल दीज थिंग्स। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम माई स्लाइड। Now vitamin D is a multipleural hormone. It has so much to say. This slide has so much to say. Vitamin D is acting on so many things. So if you are correcting the vitamin D deficiency, you are not ensuring the bone, bone health. You are also ensuring कि patient इन सारी चीज़ों से बचा रहेगा। Hypertension में इसका रोल है, diabetes, anti-aging, abdominal obesity, depression, cardiovascular problems and infertility. So it has so much to say. कि if you are preventing vitamin D deficiency, you are preventing the patient from all these problems. Now careful history and examination, this is very important. History of fall, आप patient आया आप क्या क्या पूछेंगे? History of fall, history of fracture after trivial trauma, history of any of the above mentioned diseases, malignancy, medication history, history of smoking and alcohol, history of abdominal symptoms and backache, history of groin pain and predictive fracture indicator. हिस्ट्री ऑफ एब्डोमिनल सिम्टम्स, बैकएक और हिस्ट्री ऑफ ग्रॉइन पेन, ये मैं
थोड़ा हाईलाइट करना चाहती हूँ, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी पेशेंट आया, उसने बोला कि मेरे को दर्द हो रहा है पेट में, और आप उसको ट्रीट कर रहे हैं फॉर एब्डोमिनल सिम्टम्स, बट कैचेस कभी कभी क्या होता है, D10 का फ्रैक्चर होता है और उसके कारण जो रिफर्ड पेन है वो पेरिअम्बिलिकल रीजन में होता है। तो आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है कि उसको वो भी हो सकता है, और वो कह रही है कि मेरे को आराम नहीं हो रहा डॉक्टर साहब, आप कितना भी दवा दे रहे हैं मुझे आराम नहीं हो रहा। तो यू विल हैव टू लुक फॉर और वो उस एज ग्रुप में आ रही है, 50+ है लेडी, उसको नहीं आराम हो रहा, वो बार बार कह रही है कि मेरे को पेट में दर्द है। सो दैट इज रिफर्ड पेन, जो कि D10 से जाकर वहाँ हो रहा है। बैक, वो कह रही है बैक मेरा वर्स हो गया है, थोड़ा मेरे को ज़्यादा हो रहा है, मुझे आराम नहीं हो रहा। तो बैक क्योंकि वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर्स अगेन दे आर साइलेंट फ्रैक्चर्स, उसको पता ही नहीं चलेगा कब हो गया, वो आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू हैव दैट इंडेक्स ऑफ सस्पिशन इन योर आइज कि हाँ उसको वो भी हो सकता है। केयरफुल हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स, हाइट लॉस ग्रेटर देन 1 to 1.5 inches सजेस्ट a vertebral fracture, look for features of insulin resistance and look for cushinite features। तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस स्टार्ट एग्जामिनिंग द पेशेंट फ्रॉम हेड टू टो। ओके, तो इन हेड व्हाट विल यू लुक फॉर कुशनॉइड सिम्टम्स, मूनलाइट फेस आप देख सकते हैं, हेयर लॉस, कभी पेशेंट कीमोथेरेपी पर है या एंटी कन्वल्सेंट्स एंटी टॉक्सिक ड्रग्स पर है तो हेयर लॉस हो सकता है। आई साइंस थायरोटॉक्सिकोसिस के लिए आप देख सकते हैं। देन यू कम डाउन लिटिल बिट, नेक में क्या देख सकते हैं, नेक में हम स्ट्रायास जो पिगमेंटेशन देख सकते हैं, स्किन टैग्स देख सकते हैं जो कि इंसुलिन के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस का मार्कर है। फिर आप थोड़ा और नीचे आइए, एक्जिला में अगेन आप पिगमेंटेशन देख सकते हैं। उसके बाद और थोड़ा नीचे आएंगे तो स्टर्नल टेंडरनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टर्नल टेंडरनेस इज अ साइन फॉर विटामिन D डेफिशिएंसी, ठीक है। फिर उसके बाद हम रिब केज को देखेंगे, रिब केज कैसा है उसको कोई ऑब्वियस काइफोटिक, स्कोलियोटिक, कोई ऐसी फिजिकल डिफॉर्मिटी जो आप नोटिस कर सकें। COPD में इट इज़ नॉट वेरी अनकॉमन टू फाइंड, आपको मिल सकती है। उसके बाद अगेन व्हेन यू गो डाउन अगेन एब्डोमेन में आप क्या देखेंगे, असाइटिस, इट इज़ वेरी कॉमन विद लिवर एंड रीनल डिजीजेस, सुपरफिशियल इंगॉलमेंट ऑफ वेन्स मिल सकता है। उसके बाद और नीचे जाएंगे तो लुक फॉर ग्रॉइन टेंडरनेस के लिए देखिए, नीचे जाएं और नीचे जाएं तो लेग पेन, लेग में कोई और वीकनेस वगैरह मिल जाए। प्री ट्रिबियल टेंडरनेस अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन फॉर विटामिन D डेफिशिएंसी। अगर प्री ट्रिबियल टेंडरनेस है और स्टेरल टेंडरनेस है तो विटामिन D डेफिशिएंसी 100% उसको निकलेगी। उसके बाद और क्या देख सकते हैं, फिंगर में डिफॉर्मिटीज़ फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत ही कॉमनली दिख जाती है, टोज में भी दिख जाती है। फिर पेशेंट को पीछे करिए, बैक में क्या करना है, ऊपर से नीचे तक आइए, लुक फॉर एनी टेंडरनेस एट सम पोस्टीरियर स्पाइनस प्रोसेस, आपको मिल सकती है टेंडरनेस। और उसके बाद इलियक क्रेस्ट पे टेंडरनेस मिल सकती है, एनी लोकल डिफॉर्मिटी कुछ भी मिल सकती है आपको। तो जब आप एक मेटिकुलस एग्जामिनेशन करेंगे फ्रॉम हेड टू टो, सर्टेनली यू विल फाइंड सम रीजन फॉर सेकेंडरी कॉज। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव टू डू अ मेटिकुलस फिजिकल एग्जामिनेशन, जो हम लोग ने MBBS में पढ़ा था, जनरल एग्जामिनेशन एज वेल। मैं पैलर भूल गई, पैलर इज सो कॉमन विद एनी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पैलर इज सो कॉमन। So you need to do a very very meticulous examination of the patient to diagnose. Investigations में क्या करना है, CBC, ब्लड शुगर्स, डायबिटीज़ को डायग्नोज करने के लिए CBC में हमको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। हीमोग्लोबिन अगर कम है, अनीमिया, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया, इट इज एसोसिएटेड विद एवरी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स, यू विल हैव नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया। अगर TLC इंक्रीज है बहुत ज़्यादा तो आप मैलिग्नेंसी सस्पेक्ट कर सकते हैं। उसमें अगर MCB बढ़ा हुआ है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया सस्पेक्ट कर सकते हैं। यू कैन लुक फॉर सम मैलअब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, आपको स्ट्राइक कर सकता है कि विल हैव टू इन्वेस्टिगेट दिस पेशेंट फॉर मैलअब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। तो CBC भी बहुत इन्फॉर्मेशन देगा। HbA1c डायबिटीज़ के लिए, FSH, LH, प्रोलैक्टिन एंड TSH, FSH, LH फॉर हाइपोगोनैडिक स्टेट्स। प्रीमेच्योर मीनोपॉज में तो आपको कराना है, TSH करेंगे, फास्टिंग सीरम फास्फोरस करेंगे, LFT, RFT for renal and liver diseases, serum and urinary calcium and serum cortisol levels, fasting state, alkaline phosphatase levels and vitamin D levels, DEXA scan, X-ray of thoracolumbar spine और bone turnover markers। बोन टर्नओवर मार्कर्स जो हैं इसमें दो तरह के मार्कर्स होते हैं, एक ऑस्टियोब्लास्टिक है, अगेन वही है, ये फॉर्मेटिव है और ये एब्जॉर्प्टिव है। हमेशा आपको यही याद रखना है कि बोन में दो ही चीज़ें हैं, एक तो फॉर्मेटिव है, एक एब्जॉर्प्टिव है, चाहे वो ड्रग्स हो चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको ये रीज़न फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ द कॉज फॉर ऑनगोइंग बोन लॉस, क्या हो रहा है इसके साथ में, तो sometimes you can go for these markers. These are not commonly done, but again you have to have a knowledge of all these markers if you really cannot find the reason and you are looking for some abnormal causes. So again, urinary calcium levels, if it is less than 50 milligram in 24 hours, you will diagnose malnutrition or malabsorption. This is one, तो ये एक investigation जो बहुत important है वो ये है
कि आप इसको आराम से करा सकते हैं। यूरिनरी कैल्शियम मोर देन 300 मिलीग्राम इन 24 आवर्स। अगर 50 ग्राम से कम है तो ये मेल एब्जॉर्प्शन में आ जाएगा। अगर ये 300 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो हाइपर कैल्सीयूरिया हो रहा है। एंड एक्सक्लूड कैल्शियम सप्लीमेंट्स 1 वीक बिफोर द टेस्ट। अगर आपको टेस्ट कराना है तो यू हैव टू मेक द पेशेंट ऑफ फ्रॉम ऑल द कैल्शियम सप्लीमेंट्स 1 वीक बिफोर द टेस्ट। न्यूट्रिशन रिकमेंडेशंस, कैल्शियम सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड कब है? एडोलेसेंस में देखिए 1300 मिलीग्राम पर डे। तो अगर एक चीज़ हम अगर करना चाहें प्रिवेंट करने के लिए तो हम एडोलेसेंट एज ग्रुप को टारगेट करें फॉर कैल्शियम, विटामिन डी एंड प्रोटीन। अगर उनका पीक बोन मास अच्छा हो गया तो बाद में उनका टी स्कोर और जेड स्कोर तो अच्छा आना ही आना है। तो मुझे जो लगता है, जो मैंने पढ़ा, मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट एक ये चीज़ है। और इन यूट्रो बोन का जो ग्रोथ है वो इन यूट्रो स्टार्ट होता है। अगर ANC केयर बहुत अच्छा है, विटामिन डी लेवल्स, कैल्शियम आप सप्लीमेंट कर रहे हो, तो इन यूट्रो ही फीटस का ग्रोथ इतना अच्छा होगा कि बाद में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो रिकमेंडेशन फॉर चिल्ड्रन इज 1300 मिलीग्राम पर डे। एडल्ट के लिए इट इज़ 1000 एंड 51 प्लस के लिए 1200 हो जाता है। देन बेस्ट सोर्सेज कैल्शियम का ये नहीं, मैं अभी आपको बताती हूँ जो डे टू डे वाला है। एक तो जो बफलो मिल्क है उसमें बहुत अच्छा है, और दूसरा पनीर, खोया, और जो ये ड्रम स्टिक्स होती है ना, सहजन बोलते हैं जिसको, वो बहुत अच्छा सोर्स है। रागी बहुत अच्छा सोर्स है, और सीसेम सीड्स, तिल, ये बहुत अच्छा सोर्स है। तो तिल का तो कल मैम ने बताया कि अगर 2 लड्डू खा लो तो पूरी कैल्शियम की उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। उसमें इतना ज़्यादा है। हाँ मैम, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, पर इट इज़ अबव, जो भी मैंने आपको बताए हैं दीज आर अबव 300 प्लस पर 100 मिलीग्राम, जो 100 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम, मतलब ये एलिमेंटल कैल्शियम मैं बता रही हूँ। तो सीसेम सीड्स बहुत अच्छे हैं, तिल आप खा सकते हैं, पेशेंट्स को भी बता सकते हैं, और वो इजीली अवेलेबल है अपने यहाँ। और फिर हमको अच्छा ये इंपॉर्टेंट है कि नॉट मोर देन 600 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल कैल्शियम पर डोज। जब भी आपको कैल्शियम की डोज देनी है पेशेंट को, तो आप ये ध्यान रखें कि 600 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल कैल्शियम से ज़्यादा आप एक बार में ना दें, क्योंकि अगर आप देंगे ना तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, बिकॉज फ्रैक्शनल एब्जॉर्प्शन फॉर कैल्शियम डज नॉट टेक प्लेस अबव 600 मिलीग्राम। तो जितनी भी रिक्वायरमेंट है यू हैव टू डिवाइड इट इनटू 2-3, ये आप 2 बार में 3 बार में इसको दीजिए। 1 गोली सुबह दे दीजिए, 1 गोली ये दे दीजिए, 1 गोली ऐसा है, फिर सप्लीमेंट्स के साथ में, लेकिन 600 मिलीग्राम से ज़्यादा मत लीजिए। एलिमेंटल कैल्शियम लेवल सबसे ज़्यादा किस में देखिए, कैल्शियम साइट्रेट में 20% है, 60 मिलीग्राम पर 300 मिलीग्राम, ये 20% आता है। कैल्शियम लैक्टेट 80 मिलीग्राम पर 600 मिलीग्राम 13.3, कैल्शियम ग्लूकोनेट 40 मिलीग्राम पर 500 मिलीग्राम 8%, एंड कैल्शियम कार्बोनेट 400 मिलीग्राम पर 1000 मिलीग्राम 40%। देखिए किस में सबसे ज़्यादा है एलिमेंटल कैल्शियम? कैल्शियम कार्बोनेट में सबसे ज़्यादा है। सो इफ़ यू विल आस्क मी कि व्हाट विल बी द सबसे गुड चॉइस फॉर कैल्शियम टू चूज, दैट विल बी कैल्शियम कार्बोनेट। सम पीपल से कि इसका एब्जॉर्प्शन उतना नहीं होता है, पर ऐसा नहीं है, एब्जॉर्प्शन भी होगा अगर उसको आप आफ्टर फूड बोलेंगे देने के लिए। सो आई थिंक कैल्शियम कार्बोनेट विल बी अ गुड चॉइस टू पिक फॉर सप्लीमेंटिंग कैल्शियम। नाउ न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशन, यस, विटामिन डी इसके सोर्सेज लिमिटेड हैं, वेजिटेरियंस के लिए तो काफ़ी लिमिटेड है, नॉन वेजिटेरियंस तो फिश खा सकते हैं आराम से, लेकिन इसमें हमारा मिल्क है, एग योक है, सैल्मन है, और मशरूम है, सोया मिल्क्स हैं, और आजकल टोफू बोलते हैं, टोफू आई डोंट नो वेदर इट इज़ अवेलेबल और नॉट, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सनशाइन में रहना बहुत ज़रूरी है। सनशाइन में रहने के लिए बस एक चीज़ मैं कहूँगी कि 20% ऑफ द योर बॉडी पार्ट शुड बी एक्सपोज। मतलब अगर आपको बैठना है तो 10 बजे से लेकर 2 बजे तक की धूप में बैठना है, कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए बैठना है, और आपके क्या क्या चीज़ एक्सपोज होना चाहिए, फेस, नेक एंड ये आर्म्स, ये शुड भी एक्सपोज होना चाहिए, कवर्ड नहीं होना चाहिए, इतना आपको लिए ज़रूरी है। और टारगेट लेवल्स क्या हैं इसके, मतलब डेफिशिएंसी कब डायग्नोज करेंगे, व्हेन इट इज़ लेस देन 20 नैनोग्राम पर ml, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टारगेट लेवल्स विल बी मोर देन 30 नैनोग्राम पर ml, एंड नेशनल अकेडमी ऑफ मेडिसिन रिकमेंड्स लेस देन 70 ईयर्स के लिए 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, एंड 70 ईयर्स प्लस के लिए 800 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे, ये मेंटेनेंस डोज है। इन केस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस 1000 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे, देखिए काफ़ी ज़्यादा देना पड़ेगा आपको, 1000 और 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे। एंड ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, इट इज़ 50 to 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर वीक फॉर 3 to 12 वीक्स, 8 वीक तक रिकमेंडेड है, फॉलोड बाय मेंटेनेंस थेरेपी ऑफ 800 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे। सो यू हैव टू, जब भी आपको लगे कि विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है, यूज फर्स्ट ऑर्डर फॉर दिस लेवल ऑफ विटामिन डी। एक बार लेवल आपने देख लिया 20 नैनोग्राम से कम है, यू स्टार्ट ऑन 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर वीक फॉर 8 वीक्स, एंड देन फॉलोड बाय मेंटेनेंस थेरेपी ऑफ 800 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे।
इंजेक्टेबल भी आता है, 6 लाख यूनिट्स पर डे, 6 लाख यूनिट्स का इंजेक्शन आता है, इंट्रामस्कुलर आप लगा सकते हो। और उसके बाद 3 मंथ्स के बाद लेकिन आपको फिर असेस करना पड़ेगा कि कितने लेवल से, उसके बाद ही। और पेशेंट को ये ज़रूर बताइए कि अगर मैंने बता दिया, ये नहीं कि आप सालों साल लगवा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको वापस आना है, देखना है कि इसको आगे ज़रूरत है कि नहीं है, हम बंद भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि बिकॉज समटाइम्स इट हैपेंस विद पेशेंट्स गो ऑन टेकिंग एंड देन दे लीड दे अल्टीमेटली लैंड अप विद हाइपरविटामिनोसिस डी एंड देयर लेवल्स ऑफ विटामिन डी आर वेरी एक्सेस ऑफ विटामिन डी। जो टॉक्सिसिटी इज नॉट वेरी अनकॉमन टू फाइंड। बोन पेन्स के साथ ही आते हैं, यू गेट अ लेवल डन, लेवल्स आर बियॉन्ड 90 नैनोग्राम पर ml, एंड सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद ये विटामिन डी ट्रीटमेंट। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग ट्रीटमेंट क्या क्या है हमारे पास। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन्स। Women on estrogen replacement therapy have a 50% reduction of osteoporosis related fractures. Benefit is greatest if treatment is started early and continued. केवल salient points मैं इसमें थोड़ा डिस्कस करती हूँ कि HRT किस में इंडिकेटेड है। You have to target patients who are in menopausal transition. Menopausal transition जिनका menopause होने वाला है, और who are in the early years of menopause. जैसे अगर मान लीजिए 45 साल की महिला है तो हम उसको टारगेट कर सकते हैं 43 ईयर्स से टिल 48 ईयर्स और 49 ईयर्स। वो विंडो पीरियड में जब आप ईस्ट्रोजन देंगे तो वो सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा टू इंक्रीज बोन लॉस। सो यू हैव टू टारगेट योर पेशेंट्स इन दैट विंडो पीरियड ओनली। अब ईस्ट्रोजन हम किस किस में दे सकते हैं, किस में नहीं दे सकते, ये आपको इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पेशेंट को थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की कोई हिस्ट्री है, या शी इज़ हैविंग सम हार्ट प्रॉब्लम्स उसको है, उसका लिपिड प्रोफाइल अच्छा नहीं है, और उसको कुछ अगर आपने TVS कराया उसमें एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया निकल आया, ये सारी चीज़ें ध्यान रख के ही आपको देना पड़ेगा। अगर आप मेरे से पूछो तो ईस्ट्रोजन के लिए हम लोग, अगर आपको लगता है तो हम लो डोज ईस्ट्रोजन्स आजकल अवेलेबल हैं, कॉन्जुगेटेड ईस्ट्रोजन्स विल बी प्रेफर्ड। पहले 0.625 मिलीग्राम का आता था, अब 0.325 मिलीग्राम का अवेलेबल है। सो यू कैन यूज़ दैट conjugated estrogens, and along with that you can go for topical or local form of estrogen application, and along with that अगर estrogen and progesterone हम ले रहे हैं तो we will choose for low dose estrogen and progesterone combination which are having 20 microgram of ethinyl estradiol और वो, and again with progesterones like drospirenone आजकल नया है उसके साथ में। लेकिन again you have to individualize the treatment। आपको पेशेंट का पूरा प्रोफाइल देखकर ही उसको सजेस्ट करना है कि वो क्या ले सकती है। अगेन सर्म्स में ये एक नोवेल ग्रुप है जो जिसको बोलते हैं सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। सो इसमें रैलोक्सिबिन एक ड्रग है विच इज़ FDA approved for osteoporosis and breast cancer. The dose is 60 milligram per day. It will reduce a vertebral fracture by 30 to 50%. And what is क्या इसका एडवांटेज है? It has got it is heart friendly, it is breast friendly, and it is friendly to the uterus also. So ये बहुत अच्छी एक ड्रग है जो कि हार्ट के लिए भी फ्रेंडली है, यूट्रस के लिए भी और ब्रेस्ट के लिए भी, एंड इट विल रिड्यूस LDL, रिड्यूसेस लाइपोप्रोटीन्स एंड रिड्यूसेस फिब्रोनियोडिन। बट हम कहाँ इसको नहीं दे सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है जानना। हम इसको वहाँ नहीं दे सकते जहाँ पर भी इंक्रीज हॉट फ्लशेज हो, यानी कि जो मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स हैं उनमें आप नहीं दे सकते, क्योंकि उनमें ये मीनोपॉजल लाइक सिम्टम्स कॉज कर देगी, उसमें नहीं देना है आपको। और जिसमें इंक्रीज DVT रिस्क है उसमें आपको नहीं देना है। 70 में तो बिल्कुल भी नहीं देना है। इट इज़ अवेलेबल एज रेडिस्टा एंड फ्यूना। आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस विद इट, बट ये दे सकते हैं। सो एक्चुअली एक ये बेजोडॉक्सिफिन एक नोवेल ड्रग आई है, ऑल्दो इट इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया, बट आई थिंक दिस विल बी द फ्यूचर ड्रग, क्योंकि इट इज़ मार्केटेड इन कॉम्बिनेशन विद कॉन्जुगेटेड ईस्ट्रोजन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेनोपॉजल सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन ऑफ बोन लॉस। It protects the uterus and breast from effects of estrogen and makes the use of progesterones unnecessary। प्रोजेस्टेरॉन्स जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर वो सब लिपिड प्रोफाइल और ये सब खराब करने लगता है, तो इसलिए कॉन्जुगेटेड ईस्ट्रोजन अलॉन्ग विद ये तो इट विल बी बेस्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेनोपॉजल सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन ऑफ बोन्स। So what is the mode of action of SERMs? SERMs bind to ER, that is estrogen receptor, and they produce unique receptor drug conformation resulting in differential effects on gene transcription. So again now we will be discussing the So what is the pharmacotherapy which is available for osteoporosis? तो वो again back to our basics, एक एंटी रिजॉर्प्टिव ड्रग है और एक एनाबॉलिक ड्रग है। एंटी रिजॉर्प्टिव ड्रग में बिस्फॉस्फोनेट्स हैं, जेनिसमैब है, और एनाबॉलिक में हमारे पास है टेरापेराटाइड और पैराथाम्बोन।
बस यही ड्रग्स का खेल है। बायोफॉस्फोनेट्स में क्या क्या है? एलिड्रोनेट, रेसिड्रोनेट, एल्बेड्रोनेट एंड जोलिड्रोनिक एसिड। ARZ यानी एलिड्रोनेट, रेसिड्रोनेट एंड जोलिड्रोनिक एसिड, दे आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑस्टियोपोरोसिस इन मेन एंड स्टेरॉइड इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस। And Z, that is zoledronic acid, it is used for prevention of steroid induced osteoporosis. Now alendronate 5 mg per day is used for prevention, 10 mg per day is used for treatment, and usually it is given as 70 mg per week, and it improves compliance and reduces GI side effects. Residronate, this is very commonly used. I think most of orthopedicians and practitioners are using Rhizofos 35 mg per week. Ibudronate 2.5 mg per day और 3 mg IV every 3 months. Zoledronic acid ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है because ये this can be used as 5 mg over 15 minutes IV once a year. So आपको साल में केवल एक ही बार देना है इसको, और इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा है. It really binds to the receptors very well. And बायोफॉस्फोनेट्स के साथ एक लिमिटेशन है कि बायोफॉस्फोनेट्स को उन पेशेंट्स में नहीं देना है जिनमें की नेफ्रोपैथी है या जिनका इफेक्टिव ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 35 ml per minute है. So one single investigation which will you order for before starting biophosphonates will be effective GFR and creatine clearance और ये सब. अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ है तो आप बायोफॉस्फोनेट्स नहीं देंगे. जोलेडोनिक एसिड में फिर भी इसका जो कट ऑफ है वो कम है, वो 30 है इसके लिए, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में आप जोलेडोनिक एसिड दे सकते हैं. तो बिस्फॉस्फोनेट्स का क्या रोल है? दे आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू पायरोफॉस्फेट्स कंपाउंड्स दैट आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू बोन मैट्रिक्स एंड दे रिड्यूस ऑस्टियोक्लास्ट फंक्शन एंड नंबर. सो साइड इफेक्ट्स क्या हैं इसके? जब बायोफॉस्फोनेट्स चल रहा है तो आपको क्या क्या देखना है? मस्कुलोस्केलेटल एंड जॉइंट पेन्स, ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको रेगुलर डेंटल चेकअप उसका कराना पड़ेगा कि भाई जाके दिखा लो कहीं कुछ हो तो नहीं रहा. डेंटल पेन, ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जॉ इज वेरी कॉमन. एटिपिकल फीमोरल फ्रैक्चर हो सकता है एंड पोटेंशियल फॉर रीनल टॉक्सिसिटी. ओके, बायोफॉस्फोनेट्स अगेन वन थिंग आई लाइक टू ऐड कि अगर बायोफॉस्फोनेट्स आप दे रहे हो तो आपको कब तक देना है? 3 to 5 years नॉर्मली आप उतना देंगे. उसके बाद देयर शुड बी अ ड्रग फ्री इंटरवल. वो कहते हैं हाई रिस्क केसेस में आप 10 years तक भी दे सकते हो, बट 3 to 5 years के देने के बाद में आप एक ड्रग फ्री इंटरवल करो और उसके बाद वहाँ पर एक एनाबॉलिक ड्रग को ले आओ जैसे टेरापेराटाइड, और उसके बाद देन यू अगेन मॉनिटर द पेशेंट. सो कैल्सिटोनिन किन में यूज़ कर रहे हैं? इट इज़ अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड. इट इज़ यूज्ड इन केसेस ऑफ एजिस डिजीज एंड हाइपरकैल्सीमिया, osteoporosis in women more than 5 years of menopause. For treatment, you are giving it 200 international units per day nasal spray. It is not indicated in prevention of osteoporosis. And it reduces osteoclastic activity by direct action. Basically calcitonin acute cases में दिया जाता है जहाँ पे पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ, वो अभी भी आपके पास आई है, उसको बहुत पेन है, तो आप उसको calcitonin दोगे. In that case it is really helpful. Denosumab, it is a novel drug. ये थोड़ा कॉस्टली है बट ये बहुत अच्छी ड्रग है. It is fully human monoclonal antibody to rank L, which is a final common effector for osteoclast formation, activity and survival. ये जो denosumab है ये उसका formation, activity, survival ये सबको बंद कर देगा. Osteoclastic activity को पूरी तरीके से बंद कर देगा. So it is a very good anti-disruptive drug. It has a potent anti-disruptive action. It can be given twice yearly by subcutaneous injection. 60 mg प्री-फिल्ड सिरिंज में आता है, 6 महीने में एक बार देना है आपको ये. एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस द रिस्क फॉर ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स. ब्रेस्ट कैंसर रिकरेंस को भी प्रिवेंट करता है. तो जो पेशेंट्स ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्रॉनिक कीमोथेरेपी पर हैं उन और जिनमें आपको ऐसा लग रहा है कि वो सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप कर रहे हैं, दिस कैन बी अ गुड ड्रग फॉर देम. सो एटिपिकल अगेन साइड इफेक्ट्स आर एटिपिकल फ्रैक्चर, सम स्किन रैशेस, हाइपरसेंसिटिविटी. और इसका एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिबाउंड इंक्रीज इन बोन टर्नओवर वंस ट्रीटमेंट इज डिसकंटिन्यूड, लीडिंग टू इंक्रीज इन बोन लॉस एंड फ्रैक्चर रिस्क. तो इसको बंद करने के बाद में आपको हमेशा एक सप्लीमेंट करना ही पड़ेगा. ये नहीं कि इसको देने के बाद में आपने पूरी थेरेपी वो कर दी, क्योंकि फिर इसके बाद अगेन रिबाउंड इंक्रीज हो जाएगा बोन टर्नओवर में. इट इज़ अवेलेबल एज प्रोलिया एंड एक्सगिवा. ये थोड़ा सा कॉस्टली ड्रग है. पैराथार्मोन, इट इज़ अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन and it increases, although increased parathormone causes bone loss, it can also exert anabolic effects of bone. Mild endogenous hyperparathyroidism is associated with maintenance of trabecular bone mass. मतलब अगर हम उसको कम में देंगे तो that will be of help to bone. Exogenously administered parathormone appears to have a direct action on osteoblastic activity, causing a true increase in the bone tissue and restoration of bone microarchitecture. So it is the only drug which is restoring bone architecture. Bone architecture पे और कोई drug काम नहीं कर रही है. It is the only drug which is
acting at the bone microarchitecture. And 20 microgram PPH daily by subcutaneous injection reduces vertebral fractures by 65% and non-vertebral fractures by 40 to 50%. Teriparatide, it is the, ये एक anabolic drug है. It is a recombinant fragment of human parathyroid hormone. It increasing, how does it act? It has a direct osteoblastic activity, increases bone formation, increases bone mass, improves microarchitecture. It is also improving the microtexture and increasing cancellous and cortical bone width. And the dose is 20 microgram per day subcutaneous, and maximum duration you can give is 2 years. Side effects are muscle pain, weakness, dizziness. It is available as Bonista, Zotide and Terifrac. Okay, this is a novel drug, human parathormone related peptide है, and it is slightly different from teriparatide. Similar bone formation but lesser bone resorption. Bone formation ज़्यादा है, bone resorption कम है. Dose is 80 microgram per day. ये एक नोवल ड्रग है. आई थिंक दिस विल बी द फ्यूचर ड्रग, जो कि अभी इंडिया में शायद अवेलेबल नहीं है बट अमेरिका या बाहर की कंट्रीज़ में है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए इसका जो है ना बोन रिजॉर्प्शन एक्शन भी है और बोन फॉर्मेशन एक्शन भी है, दोनों ही काम करेगी ये. तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी अ फ्यूचर ड्रग. इट इज़ अ ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी दैट ब्लॉक्स द प्रोडक्शन ऑफ स्क्लेरोस्टिन बाय astrocytes, resulting in reduced bone resorption and increased bone formation. Produced in a mammalian cell line. Dose will be 210 milligrams subcutaneous once a month for 12 months. Side effects again rash, fever, burn, swelling, muscle spasm. It is available as Evenity. ये बाहर की कंट्रीज़ में अवेलेबल हो गई है, इंडिया में अभी नहीं है. बट यू नो दिस विल बी द फ्यूचर ड्रग बिकॉज इट रिड्यूसेस बोन रिजॉर्प्शन एंड इंक्रीजेस बोन फॉर्मेशन. मतलब दोनों ही चीज़ें जो हमें चाहिए, एंटी रिजॉर्प्टिव और एनाबॉलिक, दोनों ही हैं इसमें. सो टेक होम मैसेज. Take home message will be 1 in 2 patients of osteoporosis have a secondary cause to it. Use of steroids, you should use steroids judiciously. There is a no safe dose. Treat vitamin D deficiency properly, aggressively. You should be aggressive in your approach for treating vitamin D deficiency. For optimal bone health, vitamin D, calcium and protein intake should be balanced. And increase your vision for complaint of backache. Please don't backache lightly. You should have to have a high index of suspicion for diagnosing vertebral compression fractures. And depression is an independent marker for osteoporosis. So try to be happy in whatever circumstances you are. Enjoy healthy and graceful aging. Thank you so much.